today I'll be sharing my topic, phonetical approach to reading. So basically, like in our kids, basically autistic kids, there is problem of like speaking, reading, all these things. So basically, in order to develop communication skills, basically there are four main skills. We enhance four basic skills. First of all, listening, then there is speaking, then third one is reading, and fourth one is writing. So basically you have to develop these basic four skills in the children so that they can communicate properly what they want, they communicate their needs, everything. So today we'll be taking one skill, that is reading, how we can like read using phonics. So the topic is phonetical approach of reading. So first of all, I would like to know, how many of you know this meaning of this phonetical approach? How many of you are aware, basically? Just type in the type box. I just want to know. Yes or no? Just say yes or no. Okay. One, two, three, four people are saying yes. Okay, that's good that you people know what is phonics. But still, I'm explaining the meaning of like what is phonics and what is phonetical approach of reading. Basically, phonics are basically a method of teaching. The children or people maybe to correlate sounds with the symbols. Like ABC is there. So in our time when we were kids, our teacher used to teach by like A for apple, B for ball, C for cat, like this. But nowadays in schools, basically phonetical approach is being used. So the teachers teach using phonics. Okay. So I've told you like phonics is just correlating the symbol with the sound. Like we say A, B, C, D. So in this we say A. We say A says A, B says B, and C says K. Like this we proceed. So like 26 letters of this. We are having 26 letters from A to Z. So for every letter there is a sound. Like for A there is A sound. B we say B. Okay. For C we say K, and for D we say D. So if we are teaching like letter A to the children, so we will not say A for apple, A for airplane. We will just say A. A says apple, A says X. A sound we will use. Like A होता है ना हिंदी में A, एनक वाला उस पे बड़ी एक ही मात्रा होती है, तो वो ए सेज ए बोलेंगे, हम ए साउंड यूज करेंगे। जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो हम ए नहीं बोलेंगे, हम ए बोलेंगे कि लाइक दिस इज ए एप्पल, ए एयरप्लेन, ए एक्स, ए आम। तो हम ए फॉर एयरप्लेन वो नहीं यूज करेंगे, ए फॉर एप्पल वी विल नॉट यूज दिस। फ्रॉम द बिगनिंग वी विल यूज ए साउंड ओनली, ए says a, so we will use these sound. Then if we teach b, we are teaching b letter to the children, so we will say b sound, b says b. So in this approach, basically we start with like lowercase letters. Like we don't start with capital letters A B C D. We start with small letters. Like we use A B C D. Everybody is aware. Small, like lowercase. If you can see, I can share the screen also. Am I audible to everyone? Yes, you are. Okay. Okay, I'll share the material later on. Right now, I'm just explaining. Okay. So for lowercase letter A, we use A sound. For B, we use B sound. For C, we use K sound. For D, we use D sound. Likewise, if we are teaching B, B for ball, so we will say B ball, B balloon. So in this, we will proceed like we will teach the sounds and how we will proceed to sentences.
So this, I mean, this topic is useful for both, I mean, verbal kids also and non-verbal kids also. In this, I will proceed like how, what are the steps basically? What are the steps we follow in the reading? First of all, we start with sounds, then we proceed to the sentences, how to, I mean, use sentence reading also. So we will proceed likewise. So first of all, I'm telling you the sounds, which sound to use for the letters. Like for A, we use A sound, B, we use B sound. Then for this, we can use like some activities we can also use. Like we can use this kind of board for children, and we can, I mean, use this is like B. There are also many activities of teaching this. So later on, I will share all the activities also, how to, I mean, how to teach. क्योंकि आजकल क्या है, लॉकडाउन है चल रहा है, तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर बेसिकली टीचिंग देयर चिल्ड्रन. So I mean, children are not that much attentive, so they can attend online classes. Like, so parents are basically teaching everything. So my motive is just to aware the parents like how we can use this approach for reading. So like I'm talking, I was talking about sounds. So for we use b sound, C we use k sound, and D we use d sound. Likewise, a elephant, f, g, h. So we will not say A B C D E F G H. We will say a b k d, e f g h, I j k l, m n o p, q r s t, a v, for X we use X, and Y, Y, Z. So like this, we use these sounds to teach the children. Now, after teaching the sounds, like we come to the words, like how to teach words. So I've seen many parents in the group also, they're teaching their, I mean, like this, A, apple, 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 BANANA, banana. So this is not the correct way of teaching. First of all, we introduce vowel sounds like a sound story. We teach a sound story to children. Like a sound words, we use b. Like this, I prepared this. If you can see, a sound words, we can use bat. So how will we proceed? B, a, t, bat. So we will use the sound that way only. B, bat. So we say b, a, t, bat. Okay. Then there are many examples of a sound words like bat, cat, mat, rat, sat, fat, lap. So in these way we can use a sound words with the children. So I will share all the material after the webinar. I will share all the material on. After this, we can use rhyming words like at. So we will say bat, cat, fat. So I mean, how to teach this basically? Like we can use some blocks, like these blocks. They are, I mean, available at every house, I know. So in this, we can write b here, and the second block we can write a, and the third we can write t. Actually, there was not time for me to prepare. So like this, we will write b here, then a here, and then t. So the word will become bat. And likewise, we'll show the picture also. Like this is bat, b, a, t, bat. So in this way, we will teach. We will not say bat bat hota hai. Bat bat nahi. We will say b, a, t. So in this way, we can teach non-verbal kids also. Like some children जिनकी अभी स्पीच नहीं आई है, उनको हम इसी तरीके से करा सकते हैं. लाइक ABCD ना करा के हम उनकी साउंड्स पहले निकलवाएं सारे बच्चों की. ए, ब, क, ड. आई एम रिपीटिंग द साउंड्स लाइक ए, ब, क, ड, ए, फ, ग, ह. आई आइसक्रीम नहीं बोलेंगे, ई आइसक्रीम. ई, ज, क, ल, then m, n, o, p, then q, r, s, t. और यू के लिए बोलेंगे अ,
यू फॉर अम्ब्रेला नहीं बोलेंगे, हम अम्ब्रेला बोलेंगे। अ व एक्स के लिए य ज। तो इन दिस वे वी विल प्रोसीड। तो जिन बच्चों की अभी स्पीच नहीं आई है उनकी हम ये साउंड्स की प्रैक्टिस करवा सकते हैं बच्चों को कि ए नहीं होता, ए बोलेंगे, ए ब काटा। तो इस तरह से 26 साउंड्स तो आई जाएंगी बच्चों की जिन जो नॉन वर्बल हैं। और जो वर्बल हैं उनको हम वर्ड्स करा सकते हैं ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया ए साउंड के वर्ड्स हैं, तो इसी तरह से ई साउंड वर्ड्स भी होते हैं। ई साउंड यानी आई। तो पहले तो हम पेरेंट्स को ये साउंड्स आनी चाहिए। तो लाइक हमें पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि बच्चों के लिए मुश्किल नहीं होता ये कराना, हमें हमारे लिए मुश्किल है क्योंकि हम बचपन से ABCD पढ़ते आए हैं। और हम बच्चों को भी कई पेरेंट्स यही कराते हैं कि ABCD बोलो, तो फिर वो बाद में कराना मुश्किल हो जाता है। बाद में ये साउंड्स पे लेके आना इट्स डिफिकल्ट फॉर द पेरेंट्स और चिल्ड्रन ऑल्सो। सो जिन बच्चों को अभी ABCD नहीं स्टार्ट कराया है, अल्फाबेट्स की साउंड्स नहीं कराई है, तो उनके लिए तो बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी है अडेप्ट करना कि हम शुरू से ही एबाकाडा ए टू ज साउंड्स बच्चे को कराएं। तो जो बच्चे नॉन वर्बल हैं उनको हम ये साउंड्स करा सकते हैं। लाइक फ्लैश कार्ड हमने दिखा दिया और बता दिया ये ए है, तो बच्चे ए बोलेंगे, उसको बार बार रिपीट कराइए कि ए बोलो, ए एप्पल, और ए की ही सारी पिक्चर्स दिखाइए। लाइक एक फ्लैश कार्ड बना लीजिए लाइक ए साउंड्स के, या फिर आप एक शीट भी ले सकते हैं, उस पर जितनी भी हैं ऊपर ए लिख दो, लाइक ए लिख के बोल्ड करके, और जितने भी पिक्चर्स है ए वाले जितने वर्ड्स होते हैं, ए एप्पल, ए एयरप्लेन, तो जितने भी ए वाले हैं उन सबकी पिक्चर्स आप लगा लीजिए। तो बच्चा बार बार देखेगा तो बच्चे की लाइक रिसेप्टिव लैंग्वेज भी इंप्रूव होगी। सो रिसेप्टिव से ही हम एक्सप्रेसिव पे लेके आएंगे बच्चों को। तो साउंड्स करा के हम जो नॉन वर्बल किड्स हैं वो भी वर्बल हो जाएंगे, धीरे धीरे वो साउंड्स से भी इंट्रोड्यूस होंगे और उनकी रिसेप्टिव लैंग्वेज तो बढ़ेगी कि 26 लेटर्स की आई जाएगी उनको, और धीरे धीरे वो बोलेंगे भी डेफिनेटली जो नहीं बोलते हैं बच्चे। तो इस तरह से साउंड्स करा सकते हैं बच्चों को। साउंड्स के बाद आते हैं हमारे वर्ड्स, जैसे मैंने अभी बताया ए साउंड वर्ड्स वाले जिनको हम ए फॉर एप्पल बोलते हैं ना, तो उस तरह के वर्ड्स हम करा सकते हैं। और जब भी हमें कराना है तो हमने पिक्चर्स के थ्रू ही कराना है बच्चे को, क्योंकि अगर पिक्चर के थ्रू बच्चे को कराएंगे तो बहुत ईजी हो जाता है लर्न करना। लाइक जो छोटे बच्चे होते हैं वो पिक्चर से ही एसोसिएट करते हैं अपनी लर्निंग को। जैसे बैट हमने एक्सप्लेन करा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ब्लॉक्स के थ्रू हम करा सकते हैं। यहाँ ब लिख दिया हमने, एक ब्लॉक पे लिख दिया ए एप्पल, ए साउंड लिख दी, और एक पे हमने लिख दिया ट, और ये ब्लॉक्स को हम इकट्ठा तीन को लगा के बैट बता सकते हैं बच्चे को, ब ए ट बैट। और फिर साथ में हम बैट की पिक्चर दिखा दे या कोई फ्लैश कार्ड दिखा दे तो बच्चे को समझ आ जाएगा कि ये बैट है, और साथ में उसको स्पेलिंग भी याद हो जाएगी। इसी तरह से कैट हमने कराना है तो भी ऐसे बना सकते हैं ब्लॉक्स, क लिख दिया यहाँ पे, एक पे ए लिख दिया, एक पे ट लिख दिया। तो इसी तरह से हम एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों को कराएंगे तो बच्चों की लर्निंग फास्ट होगी। बच्चों की लर्निंग फास्ट भी होगी और उनको याद भी रहेगा। लाइक रट्टाफाई नहीं करेंगे, रटेंगे इन चीजों को, समझेंगे, एंड देन दे विल लर्न द साउंड्स आल्सो एंड द स्पेलिंग्स ऑफ द वर्ड्स आल्सो। लाइकवाइज ए साउंड में मैट आ गया तो यहाँ पे म लिख दिया, एक पे ए लिख दिया, एक पे ट लिख दिया, तो मैट हो गया। फिर मैट की हमने एक पिक्चर ड्रॉ कर दी साथ में। अगर हम लाइक पेपर पे करा रहे हैं या किसी भी रफ पे करा रहे हैं तो हम साथ में मैट लिख के मैट की पिक्चर ड्रॉ कर दी साथ में, या मैट का एक फ्लैश कार्ड दिखा दिया बच्चे को। तो इस तरह से बच्चे को क्लियर हो जाएगा कि मैट होता क्या, ये भी क्लियर हो जाएगा, साउंड्स भी आ जाएंगी म ए ट, और स्पेलिंग भी याद हो जाएगी मैट की। फिर ऐसी रैट, सैट, फैट की हम पिक्चर बना सकते हैं ऐसे बना के सर्कल करके, तो फैट दिखा दिया, बच्चों को पता चल जाएगा फैट क्या होता है। देन लैप, गैप, नैप, वैट, बैग हो गया, ऐसी बैग करा सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है जिनके थ्रू हम ये 3 लेटर जो वर्ड्स होते हैं ना वो बच्चों को करा सकते हैं, और फोनेटिकली कराना है हमें, शुरू से ही हमने फोनिक्स के थ्रू ही कराना है। फिर लैग हो गया, नैग, टैग, ये सारे ए साउंड के वर्ड्स हैं। तो पहले तो हमने ए साउंड के वर्ड्स करा दिए, फिर उसके बाद हम कराएंगे राइमिंग वर्ड्स पे आएंगे, ए साउंड के ही राइमिंग वर्ड, जैसे एट, ए ट, जिसके लास्ट में ए हो और ट हो, तो बैट, कैट, फैट, मैट, रैट, सैट, तो इसके लास्ट में ए और ट है। फिर हम ऐप वाले वर्ड्स करा सकते हैं, लाइक लैप, जिसके लास्ट में ए और प, ये दो हैं, लैप, नैप, टैप।
सो दीज आर द राइमिंग वर्ड्स, और राइमिंग वर्ड से बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं और वो खुद आपको आइडियाज बताएंगे। जिन बच्चों की स्पीच आ गई वो खुद ही बताएंगे कि मम्मा ये हो सकता है, बैट हो सकता है, कैट, रैट, फैट, खुद ही बताएंगे आपको। सो इसी तरह से हम पहले ए करा दिए हमने, फिर जैसे हमारे वॉवल्स होते हैं ए आई ई बोलते हैं ना, ए आई ई ओ यू, ये वॉवल्स होते हैं। तो हम उसको ए नहीं बोलेंगे, हम ए बोलेंगे। ए साउंड वाले वर्ड्स हमने अभी करे। अब हम आई साउंड वाले, जिसको हम आई बोलते हैं ना बचपन से, उसको हमने बोलना है ई। ई साउंड वर्ड्स, ई साउंड वर्ड्स करेंगे हम। उसमें आपका हो गया जैसे लिप हो गया, एल आई पी, लिप नहीं बोलेंगे, ल ई प लिप बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही स ई प सिप, क्योंकि अगर हम उस वर्ड को भी बोलेंगे तो वो सिप ही बन रहा है, स ई प। अगर आई सिखाएंगे ना तो बच्चों के लिए वो रीड करना मुश्किल हो जाएगा। और कई बच्चे आपने देखा है जो थोड़े क्यूरियस होते हैं, वो ये चीज पूछते भी है। जैसे अगर हमने अभी कैट की स्पेलिंग पढ़ी थी, तो हम बचपन में हम लोगों ने ये पढ़ा, हमारी टीचर्स ने जो हमें पढ़ाया है वो CAT कैट पढ़ाया है, ठीक है। बट जो सी की साउंड है वो तो क साउंड है। अगर हम शुरू से ही बताएंगे कि वो सी नहीं है, वो क है, लाइक, तो बच्चे भी इजी हो जाएंगे, रीडिंग करना बच्चों के लिए इजी हो जाएगा। चाहे वो आई मीन न्यूरोटिपिकल है या न्यूरो डाइवर्स है, दोनों केसेस में ही फोनेटिकल अप्रोच यूजफुल है और बहुत ही मतलब आगे रीडिंग बड़ी अच्छी डेवलप कर सकते हैं बच्चों की हम। तो क ए ट कैट। सो इन दिस वे वी कैन टीच टू द चिल्ड्रन। अब हम आएंगे ई साउंड वर्ड्स पे। ई यानी जो आइसक्रीम वाला आई होता है ना, स्मॉल, तो ई साउंड वर्ड्स। ई साउंड वर्ड्स में हम इंट्रोड्यूस करेंगे इन से, ई न इन, ई बोलेंगे, ई, आई नहीं बोलेंगे, आई एन नहीं बोलेंगे हम, ई न इन। सो इन पे भी राइमिंग वर्ड्स करा सकते हैं, पिन, प ई न पिन। फिर विन, विन कैसे बोलेंगे हम? विन ऐसे नहीं बोलेंगे, WIN ऐसे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे व ई न विन बोलेंगे। ऐसे ही ट ई न टिन बोलेंगे हम। और डिन, डिन राइमिंग वर्ड्स। तो हम बच्चों को ऐसे इजीली राइमिंग वर्ड्स के थ्रू करा सकते हैं कि ई न वाले कौन से वर्ड्स हैं, तो बच्चे बताएंगे इन, टिन, बिन। फिर हम करा सकते हैं इप, इप वाले। इप में आएगा हमारा आई पी, लिखेंगे तो हम वो आई, लेकिन हम बोलेंगे उसको ई बोलेंगे हम, ई, ई प, क्योंकि साउंड भी ई की ही है। सिप, टिप, डिप, हिप। तो इसी तरह से ये वर्ड जब हमने कराया तो साथ में हम पिक्चर्स के थ्रू कराएंगे। जैसे हमने पिन वर्ड कराया आज, तो हम पिन लिखवा के प ई ना पिन के साथ पिन की पिक्चर दिखा देंगे, ठीक है। हमने विन कराया तो व ई न विन की विन की पिक्चर दिखा देंगे ऐसे ही। फिर हमने सिप कराया तो पानी पीते हुए दिखा देंगे कि सिप लिया पानी का। फिर हम टिप, टिप हमें एक्सप्लेन करना है तो हम पेन बता सकते हैं, पेन दिखा दिया, पेन की क्या होती है बच्चा, ये टिप होती है। तो ट ई पर टिप, इस तरह से हम करा सकते हैं। हिप, बिब, बिब कराना है तो ब ई ब लिख करके हम बिब की एक पिक्चर ड्रॉ कर देंगे, या फ्लैश कार्ड अवेलेबल है तो हम फ्लैश कार्ड दिखा देंगे। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो पिक्चर्स के थ्रू जल्दी सीखते हैं, क्योंकि बेसिकली विजुअल लर्नर्स होते हैं। छोटे बच्चे जो भी होते हैं वो विजुअल लर्नर्स होते हैं, वो पिक्चर देख के ही सीखते हैं। तो हम जो भी वर्ड करा रहे हैं साथ में उसकी पिक्चर जरूर दिखाएं बच्चे को, तो बच्चे को समझ आ जाएगा ये क्या वर्ड है और इसकी स्पेलिंग क्या है, और इसकी पिक्चर देखेंगे तो उनको, उनके माइंड में वो क्लियर हो जाएगा और याद भी रहेगा उनको कि क्या वर्ड हमने किया था। ऐसे ईट वाले वर्ड्स करा सकते हैं, इट वाले, ईट इट वाले हो जाएंगे बिट, हिट, लिट, पिट। लिट की पिक्चर दिखा दी, हम लिट करा रहे, ईटर लिट की पिक्चर दिखा दी हमने, बना दी, या फ्लैश कार्ड। तो इसी तरह से हम ई साउंड वर्ड्स करा सकते हैं। अब जैसे ही ई साउंड वर्ड्स हम करा रहे हैं तो साथ में एक स्टोरी भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी कुछ भी अपने आप से स्टोरी बना ली, या मैं कुछ स्टोरीज मेरे पास है मैं सेंड कर दूंगी ग्रुप में, तो उसके थ्रू बच्चे और जल्दी सीखेंगे। हमने स्टोरी कुछ भी बना दी बच्चों को और वो दिखा दी, और रीड हमने खुद कर दिया। अभी रीडिंग बच्चे को नहीं आती, मैं उन बच्चों की बात करूँ जिनको भी रीडिंग नहीं आती है, अभी हम वर्ड्स ही करा रहे हैं, तो हमने खुद रीड करके बता दिया बच्चे को कि ये वर्ड्स है। तो उसमें सारे ई साउंड वाले ही वर्ड्स आएंगे, लाइक पिन, विन, टिन, सिप, टिप। उस स्टोरी के अंदर सारे यही वर्ड्स आएंगे। तो बच्चे जितना रिपीटेशन देंगे हम बच्चों को, उतनी जल्दी बच्चे सीखते हैं। तो जितना बार बार चीजों को रिपीट करेंगे हम, उतना वो बच्चे जल्दी सीखेंगे। और पिक्चर्स के थ्रू कराना बेसिकली, हमें जितनी ज्यादा एक्टिविटीज करा सकते हैं उतनी ज्यादा
एक्टिविटीज कराइए बच्चे को, बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत फास्ट लर्नर्स होते हैं। ऐसे ही अब ई के बाद हम कराएंगे असाउंड वर्ड्स। असाउंड वर्ड्स मतलब जो यू हम लिखते हैं ना, यू स्मॉल लेटर यू, तो असाउंड वर्ड्स। असाउंड वर्ड्स में हमारे आ जाएंगे रब, टब, हग, रन, कप। तो हमें अगर जैसे सिखाना है, हमें रन सिखाना है हमने, ठीक है, जिसमें अ साउंड वाले आएंगे, तो हम लिख देंगे ऐसे, जैसे मैंने अभी बताया था, र लिख दिया, इस पर र लिख दिया, फिर अ लिख दिया, फिर न लिख दिया, तो इकट्ठा बन गया रन। तो ऐसे हम रीडिंग सिखा सकते हैं बच्चों को वर्ड्स की, कि र अ न, रन बन गया। फिर सन की पिक्चर दिखा दी, सन बना दिया, ड्रॉ कर दिया, और स अ न, सन बन गया। ऐसी बस की पिक्चर दिखा दी हमने, ब अ स, बस। और हम और एक और एक्टिविटी ऐसे कर सकते हैं, लाइक हमने ए साउंड के वर्ड्स करा दिए, हमने ई साउंड के वर्ड्स करा दिए, और हमने अ साउंड के करा दिए, 3 साउंड के हमने करा दिए। अब हम क्या करेंगे, इन ब्लॉक्स पे लिख करके ना रख देंगे बच्चों के सामने कि बच्चे आप खुद बनाओ वर्ड्स। तो उनसे क्रिएटिविटी भी डेवलप होगी बच्चे की, बच्चा खुद ढूंढेगा अपने आप ही। उनको बोल दिया हमने बच्चे बैग बनाओ, ठीक है, तो वो पहले ढूंढेगा कि ब कहाँ है, ब वाला ब्लॉक ढूंढेगा, फिर वो कहेगा ये ब है, ए है, ग, तो वो खुद बनाएगा और एक लाइन में लगाएगा कि ब ए ग, ये बैग हो गया। तो ऐसे ऐसी इस तरह की एक्टिविटीज, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो हम बच्चों को करा सकते हैं। इससे वर्ड्स की लर्निंग बहुत इजी हो जाएगी बच्चों की, और बच्चे रटेंगे नहीं, समझ करके करेंगे उनको। फिर अ साउंड में हो गया आपका सन, फन, हग। तो बेसिकली मेरा मोटिव ये है कि हम यू नहीं बोलेंगे, हम अ बोलेंगे, अ साउंड वर्ड, स अ न, सन, ब अ स, बस। देन देयर इज हग, हग सिखा सकते हैं, हग वर्ड, ह अ ग, हग। तो हग करते हुए पिक्चर दिखा सकते हैं हम, तो ये हग हो जाएगा। इसी तरह से जितने भी साउंड्स हैं हम उनको इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद हम एक और एक्टिविटी करा सकते हैं बच्चों को, जिसमें राइमिंग वर्ड्स दे दिए हमने, कि सन दे दिया, और सन के जितने भी राइमिंग वर्ड्स हैं वो ढूंढो या लिखो, जो बच्चे लिख सकते हैं, ऐसे करा सकते हैं हम। और ये सब जब सारी साउंड्स हो जाएंगी, ए ई यू ओ, ओ साउंड वर्ड्स की हमने जैसे कराई, तो ऑब वाले वर्ड्स करा दिए। पहले ऑब में आ जाएंगे ओ ब, जिसमें लास्ट में ऑब होगा, कॉब, गॉब, जॉब, रॉब, सॉब। तो ये भी हम अगर ऐसे हम ब्लॉक्स लेके सब पे अल्फाबेट्स लिख देंगे ना, जितने भी है ए टू ज, तो बच्चे खुद बनाना सीखेंगे। उनको बोलो खुद ही बनाओ आप वर्ड, लिखना नहीं आता कोई बात नहीं। अब जैसे हमने बोल दिया जॉब, जॉब एक वर्ड है जिसमें ओ साउंड वाले वर्ड्स हैं, तो बच्चा पहले ज ढूंढेगा, ज है ये, फिर ओ ढूंढेगा, ओ। मैंने इस पे लिखा नहीं है, आप लोग लिख सकते हो, लाइक मैं बताती हूँ। क लिख दिया एक एक ब्लॉक पे, क लिख दिया ऐसे, देन ओ लिख दिया, ब लिख दिया, तो ये 3 लेटर वर्ड बन जाएगा हमारा कॉब। ऐसे ही हमें जॉब सिखाना है, तो ज ओ ब, जॉब। तो ऑब साउंड वाले वर्ड्स हम करा सकते हैं। फिर हम लाइक करा सकते हैं ऑग साउंड वाले वर्ड्स। ऑग साउंड वाले में आ जाएंगे ओ और ग, जिनकी एंडिंग में ओ और ग होगा, जैसे बॉग, फॉग, जॉग, लॉग। तो हम इनकी पिक्चर्स दिखा सकते हैं कि जॉग, बच्चे को नहीं पता जॉग क्या होता है, जैसे जॉगिंग करते हैं, तो एक कुछ बच्चा दिखा दिया जॉगिंग करता हुआ, तो जॉग हो गया। लॉग दिखा दी, लॉग की पिक्चर बना के दिखा दी लॉग, या फ्लैश कार्ड दिखा दिया। तो माई मोटिव इज लाइक वर्ड्स कराते हुए उनकी पिक्चर्स जरूर दिखानी है, और जो ओ साउंड वर्ड्स हैं उनकी अगर हम स्टोरी इंट्रोड्यूस कर देंगे तो और अच्छा हो जाएगा, बच्चे को स्टोरी भी याद हो जाएगी, और बच्चे के माइंड में पिक्चर बन जाएगी कि हाँ ओ साउंड वाले वर्ड्स ये होते हैं, ई साउंड वाले वर्ड्स ये होते हैं। इसी तरह से हमारा ई साउंड वर्ड्स मैंने करा दिया, अ साउंड वर्ड्स करा दिया। तो जितने वॉवल्स हैं ए आई ई ओ यू, तो इन सब की साउंड स्टोरी आती है, लाइक ए साउंड स्टोरी आती है, ई साउंड स्टोरी, ओ साउंड स्टोरी, एंड यू साउंड। जितने भी वोवल्स हैं हमारे ये पांचों, इनकी
साउंड स्टोरीज होती है मैं आपको सेंड कर दूंगी बाद में ग्रुप में, वेबिनार के बाद शेयर कर दूंगी मैं। और जितने ये वर्ड्स हैं इनका भी मैं मटेरियल सेंड कर दूंगी आपको। उसके बाद जब हमारी ये साउंड्स हो गई हैं, हम बच्चे का और बेस थोड़ा लाइक स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम करा सकते हैं, मैचिंग करा सकते हैं। जैसे हम एक पेपर पे पिक्चर्स कुछ भी ड्रॉ कर दिए हमने और साथ में उनकी साउंड्स लिख दिए हैं, जैसे बलून है, एप्पल है, मैंगो है और कार है, इन सब की हमने साउंड्स लिख दी हैं। और बच्चे को बोलेंगे कि मैच करो इसको। जैसे पहले बलून बना हुआ है तो बच्चा बलून को ब से मैच करेगा। फिर क्या बना हुआ है, एप्पल है तो एप्पल को ए साउंड से मैच करेगा। फिर मैंगो है तो मैंगो को म से मैच करेगा। कार है तो कार को क से मैच करेगा। तो ये सारी एक्टिविटीज हम करा सकते हैं, मैचिंग की करा सकते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है जिसके थ्रू हम साउंड्स क्लियर कर सकते हैं। तो हमें रीडिंग में बहुत जल्दी नहीं करनी, पहले हमने सारी साउंड्स बच्चे की क्लियर करनी है मैचिंग करा के और बहुत सारी एक्टिविटीज। जब बच्चे का ये बेस स्ट्रांग हो जाता है, सारी स्ट्रांग हो जाता है, उसके बाद हमने वर्ड्स इंट्रोड्यूस करने हैं लाइक वॉवल्स के थ्रू। जैसे मैंने अभी बताया, पहले ए साउंड वाले वॉवल्स कराने हैं, फिर ई साउंड वाले, फिर ओ साउंड वाले, फिर अ साउंड वाले। तो जब ये सारे वॉवल्स हो जाएंगे फिर हम बच्चे को बीच बीच में से हमने जैसे एक पेज पे लिख दिया, बहुत सारे मिक्स लिख दिए सारे साउंड्स, ए ब क ड सब ऊपर नीचे करके, और बच्चे को बोलेंगे सर्कल करो, ब साउंड को सर्कल करो, ए साउंड को सर्कल करो, फ साउंड को सर्कल करो। तो बच्चा सर्कल करेगा तो उनका विजुअल स्ट्रांग होगा कि हाँ ये ए है, ये ब है। तो ये सारी एक्टिविटीज हम बच्चे को करा सकते हैं। जब ये बच्चे का क्लियर हो जाएगा, सारी साउंड्स क्लियर हो जाएंगी, वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे थ्रू वॉवल्स, फिर हम आएंगे इनिशियल साउंड पे। इनिशियल साउंड क्या होती है, जैसे वर्ड है, कोई भी कार है, उसकी इनिशियल साउंड यानी पहला लेटर क है तो उसकी इनिशियल साउंड होगी क। फिर बॉल, हमने बॉल की पिक्चर बना दी, साथ में लिख दिया बॉल, ब ए डबल ल बॉल। इनिशियल साउंड क्या है उसकी, ब। लाइक ब स्टार्टिंग में आ रहा है तो इनिशियल साउंड है उसकी ब। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड जो भी हमने करे हैं उनकी हम इनिशियल साउंड की बच्चों का लिस्ट बना सकते हैं और लिखवा सकते हैं, या उनसे पूछ सकते हैं कि बेटा बताओ इसकी इनिशियल साउंड क्या है। कार, व्हाट इज द इनिशियल साउंड ऑफ कार? तो द चाइल्ड विल से क साउंड। देन बॉल, द चाइल्ड विल से ब साउंड। और अगर बच्चे की राइटिंग है, साथ साथ हम राइटिंग भी कराएंगे बच्चों को, तो हम राइटिंग में भी बच्चा बॉल के साथ लिखेगा ब, इसकी इनिशियल साउंड है। इनिशियल साउंड जब क्लियर हो जाएगी फिर हम आएंगे लास्ट साउंड पे कि लास्ट साउंड क्या होती है। जैसे कोई वर्ड है बस, बस की पिक्चर दिखाई, ब अ स, तो उसके लास्ट में क्या आ रहा है, स आ रहा है। स मतलब जो एस हम लिखते हैं सन वाला, स आ रहा है तो बच्चा लिखेगा लास्ट साउंड है उसकी स। ऐसे ही डॉग है तो डॉग की पिक्चर दिखा दी और डॉग लिख दिया तो लास्ट में क्या आएगा डॉग में, ड ओ ग डॉग। देन मॉम लिख दिया, म ओ म मॉम, तो लास्ट साउंड क्या है इसकी, म है। तो इसी तरह से आप इनिशियल साउंड, लास्ट साउंड करवा सकते हैं, इससे और वर्ड्स क्लियर होंगे। ये सब कराने के बाद हम बच्चे को कराते हैं, मैं स्टेप वाइज एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे हमने साउंड से वर्ड्स पे लेके आना है। देन फ्रॉम वर्ड्स वी टेक चिल्ड्रन टू द सेंटेंसेस, कैसे हम फिर सेंटेंस रीडिंग कराएंगे वो भी मैं अभी बताऊंगी आपको। पहले मैं सारी साउंड्स क्लियर कर लूं, उसके बाद फिर मैं सेंटेंसेस पे आऊंगी वर्ड्स के बाद। फिर आती है हमारी साउंड ब्लेंड वर्ड्स, जो हम डबल ई लिखते हैं, डबल ई वाले जो वर्ड उसको ई साउंड वर्ड्स बोलते हैं, ई साउंड वर्ड्स। जैसे बीप हो गया, बीप, बीप एक वर्ड है, उसकी स्पेलिंग है ब डबल ए प। तो हम बोलेंगे, हम डबल ए नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ब ए प, बीप, ऐसे एक्सप्लेन करेंगे बच्चे को। फिर एक वर्ड है जैसे फीट हो गया एक वर्ड, तो हम बोलेंगे फ ए ट, फीट, ऐसे बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे फ डबल ई ट, ऐसे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे फ ए ट, फीट। जो ई की बड़ी साउंड है, यानी बड़ी की मात्रा होती है ना, ई बड़ी की मात्रा, वो आएगी फी, फ ई ट, फीट। फिर ऐसे स्लीप है, स ल ए
प। तो हम छोटे वर्ड से हमने इंट्रोड्यूस करा, छोटे वर्ड से हमें बड़े वर्ड्स पे लेके जाना है बच्चों को। हमने पहले 3 लेटर वर्ड्स करे, अब हमारे 4 लेटर के वर्ड्स आ जाएंगे, जैसे कीन, बीप, जीप हो गया, वीप। तो साथ में इसकी पिक्चर भी दिखा दो कि वीप की पिक्चर क्या होती है, रोना, ऐसे एक फेस दिखा दिया और उस पर रो रहा है बच्चा, तो वीप। व ए प वीप। देन देयर इज क्वीन, क्व अ ए न, ई बोलेंगे हम, डबल ई नहीं बोलेंगे, ई, क्व अ ई न, क्वीन। तो ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, ये साउंड है, इस तरह से बच्चा रीड करेगा तो उसको आगे डिफिकल्ट नहीं होगा रीडिंग में सेंटेंसेस की भी। तो क्वीन की हम स्पेलिंग ये नहीं बोलेंगे क्यू यू डबल ई एन, ये नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे क्व अ ई न। एक्चुअली हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, कई पेरेंट्स को मुश्किल लग रहा होगा शायद, क्योंकि हमने साउंड्स नहीं करी बचपन में, तो पहले हमें खुद लर्न करना होगा ये सारी साउंड्स की, कौन कौन से लेटर्स की साउंड्स क्या है। तो ये हमारे लिए मुश्किल है, बच्चों को कराना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बच्चे बहुत जल्दी लर्न करते हैं। अगर हम उनको रिपीटिशन देंगे, बार बार एक ही चीज को कराएंगे, तो बच्चे ये वाली साउंड्स बहुत जल्दी सीखेंगे। और जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं करा है रीडिंग, शुरू से फोनिक्स के थ्रू आप कराएंगे तो बच्चे जल्दी रीड करते हैं और जल्दी कैच करते हैं और सेंटेंसेस पे लाना इजी हो जाता है। तो अभी हमने करा ई साउंड वर्ड्स, अब हम करेंगे ऊ साउंड वर्ड्स। ऊ साउंड वर्ड्स में होते हैं डबल ओ, जो डबल ओ है उसमें ऊ साउंड वर्ड, जैसे बुक, ब ऊ क, तो हम ये बुक बताएंगे बच्चों को, बुक। देन फुट, फ ऊ ट, फुट। देन जू करा सकते हैं, ज, जेड नहीं बोलेंगे हम, जेड डबल ओ नहीं बोलेंगे, जू की स्पेलिंग हम बोलेंगे ज ऊ, यानी ज और डबल ओ आ जाएगा, ज ऊ जू। फिर ऐसे पूल, प ऊ ल, ये वर्ड्स करा दी और साथ साथ वर्ड्स के पिक्चर्स भी बच्चों को शो करेंगे, ये वर्ड्स है और ये पिक्चर्स है। देन ऊ साउंड वर्ड्स के बाद हमारी आती है ल साउंड वर्ड्स। ल जो डबल एल होता है, डबल एल साउंड के वर्ड्स होते हैं, जैसे बेल हो गया, ब ए डबल ला बेल। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे जैसे हम राइमिंग वर्ड्स भी करा सकते हैं, जैसे बिल हो गया, बिल, तो ब ई ल, बिल ल। तो जब डबल एल आता है जिनके लास्ट में डबल ल आता है, उन वर्ड्स को बिल, मिल, टिल। तो ये वर्ड्स राइमिंग वर्ड्स करा सकते हैं हम बच्चों को। बिल पिक्चर दिखा दी, मिल की पिक्चर दिखा दी, टिल बता दिया टिल का क्या मीनिंग है। तो इस तरह से हम करा सकते हैं। और डबल ल वाले साउंड्स होते हैं पुल, पुल हो गया, जैसे प अ ल, पुल, फुल, बुल। तो ये सारे साउंड स्टोरी, साउंड ब्लेंड वर्ड्स हैं। तो ये बड़े वर्ड्स, छोटे वर्ड से हम बच्चों को लेके आए हैं बड़े वर्ड्स पे। लाइक हमने पहले थ्री लेटर वर्ड्स करे, फिर हमने 4 लेटर वर्ड्स करे। तो इस तरह से हम सारे वर्ड्स बच्चों को सिखा सकते हैं, कौन सी साउंड के कौन से वर्ड्स होते हैं। जब बच्चों को वर्ड्स आ गए हैं तो साथ साथ हम सेंटेंसेस पे लेके आएंगे बच्चों को, कि कोई भी हमने पिक्चर दिखा दी और लाइक उसको बोला कि इसको डिस्क्राइब करो कि व्हाट्स गोइंग ऑन द पिक्चर, पिक्चर में क्या हो रहा है। जैसे एक पार्क की पिक्चर दिखा दी या कोई पिकनिक की पिक्चर दिखा दी, तो बच्चा बताएगा द बॉय इज लाइक सिटिंग ऑन द मैट। तो बच्चों की ऐसे हम कॉन्वर्सेशन स्किल्स भी डेवलप कर सकते हैं, कि पिक्चर दिखा दी, बताओ पिक्चर में क्या हो रहा है, द बॉय इज सिटिंग ऑन द मैट। तो साथ साथ हम बच्चों को लिखना भी सिखाएंगे। अभी आज तो मैं रीडिंग का करा रही हूँ, लाइक अगर आप चाहोगे तो मैं राइटिंग का भी बता सकती हूँ कि कैसे राइटिंग स्किल्स बच्चों की इंप्रूव कर सकते हैं। अभी हम रीडिंग का ही करेंगे आज। तो रीडिंग में हम जब पहले हमने 3 लेटर वर्ड्स कराए, फिर हमने 4 लेटर वर्ड्स कराए, सारी साउंड स्टोरीज कराई। अब हम धीरे धीरे बच्चों को सेंटेंसेस पर लेकर आएंगे। पहले स्मॉल सेंटेंसेस से शुरू करेंगे, फिर थोड़े बड़े सेंटेंसेस पर लेके जाएंगे। तो इस तरह से हम बच्चों को रीडिंग सिखा सकते हैं। फिर हमने सारे वर्ड्स हो गए, सारी साउंड्स हो गई, साउंड ब्लेंड वर्ड्स हो गए। देन वी स्टार्ट विद सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस के लिए एक्टिविटीज करा सकते हैं बच्चों को, पिक्चर दिखाई या कोई स्टोरी करा सकते हैं। स्टोरी इंट्रोड्यूस कर दी, स्टोरी सुना दी और बताया क्या क्या हो रहा है स्टोरी में। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस करा सकते हैं, बच्चों की कॉन्वर्सेशनल स्किल्स इंप्रूव होंगी। और पिक्चर के थ्रू जैसे मैंने बताया कि पिक्चर में एक्सप्लेन करो, पिक्चर डिस्क्रिप्शन कि पिक्चर में क्या क्या हो रहा है। द बॉय इज ईटिंग, गर्ल क्या करी, तो हम पूछ सकते हैं बच्चों से व्हाट इज द गर्ल डूइंग, तो बच्चा बोलेगा द गर्ल इज प्लेइंग
और द बॉय इज ईटिंग। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस करा सकते हैं। तो जब हमने सारी साउंड्स करा दी, फिर हम बुक के थ्रू बच्चों को थोड़ी स्टोरीज बुक आती है ना, तो शॉर्ट स्टोरीज वाली बुक्स बच्चों को लाके दे सकते हैं कि रीडिंग करो। तो ऐसे बच्चों में रीडिंग हैबिट्स इनकलकेट होंगी, बच्चे डेली रीड करेंगे, नई नई स्टोरीज पढ़ेंगे, तो मॉरल्स भी पता चलेंगे और साथ में रीडिंग हैबिट डेवलप होगी। फिर हम टेक्स्ट बुक तो होती है बच्चों की, टेक्स्ट बुक के थ्रू भी रीडिंग करा ही रहे हैं। तो बट बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि हम जैसे बच्चों की टेक्स्ट बुक होती है, उसमें साथ में पिक्चर्स बनी होती है और साथ में सेंटेंसेस होते हैं कि जो भी हो रहा है स्टोरी में, तो साथ साथ बच्चा रीड कर लेता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, जैसे मंकी की पिक्चर है, द मंकी सिटिंग ऑन द ट्री, ये लाइन है, साथ में एक ट्री बना हुआ, उसमें मंकी बैठा हुआ है, ये ऐसे करके टेक्स्ट बुक्स होती है। तो बच्चा क्या करता है, मंकी की उसको रीडिंग नहीं आती, बट वो मंकी की पिक्चर देख लेता है और वो खुद ही गेस वर्क करता है कि ये मंकी है, म से शुरू हो रहा है, ओ है, तो ये मंकी है। तो इस तरह से बहुत बच्चे गेस वर्क करते हैं और फिक्सेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम जब बच्चों का रीडिंग असेसमेंट लेते हैं, हम क्या करते हैं, जो भी हमने स्टोरी कराई, हम एक पेपर लेते हैं और उस पर सारे सेंटेंसेस लिख देते हैं। हम शुरू में 3-4 सेंटेंसेस से ही शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे, हम सेंटेंसेस लिख देंगे, उस पर कोई पिक्चर नहीं होगी, और बच्चे को बोलेंगे इसको रीड करो आप। तो बच्चा रीड करके बताएगा, तो उसमें उसको थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी, कोई पिक्चर नहीं बनी हुई और खुद ही रीड करना है। तो इस तरह से हम बच्चे का रीडिंग असेसमेंट ले सकते हैं, कैसे बच्चों को रीडिंग कराएं। और आज हमने ये करा कि साउंड्स से बच्चों को वर्ड्स पे कैसे लेके आए और वर्ड्स से सेंटेंसेस पर कैसे लेकर आए। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। If someone want to ask any question, you can ask. प्रियंका जी, अगर किसी को क्वेश्चन है तो यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स, और एंड विल गो वन बाय वन कि आप अनम्यूट कर सके, या फिर एनी वन ऑफ यू कैन स्टार्ट। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सब एक साथ अनम्यूट करें। मैम, मुझे एक क्वेश्चन है कि आपने जैसे साउंड का बताया, दैट इज फाइन, बट जैसे नाम बच्चे का अगर स्पेलिंग उसको करवाएंगे तो उसको हम कैसे बताएंगे? जैसे नाम की जो स्पेलिंग होती है वो साउंड से नहीं होती। हाँ, तो हम ऐसे ही करेंगे, जैसे समृद्ध है एक नेम बच्चे का, तो हम ऐसे ही कराएंगे जैसे हमने साउंड कराई, स, ए, म, र, ई, ड, ह। तो ऐसे ये समृद्ध है जैसे बच्चे का नाम मैंने पेपर पे लिखा, तो हम ऐसे ही कराएंगे, साउंड से ही कराएंगे, स, ए, म, र, आई नहीं बोलेंगे, ई बोलेंगे, ड, ह, तो समृद्ध। तो हम साउंड, जैसे मेरे बेटे का नाम है इतांश, EITANSH। एक सेकंड दोबारा बताइए, ई आई टी ए दोबारा, हाँ जी, एन एन एस एस एच। ओके, इतांश, इतांश है ना आपके बच्चे का नाम। तो हम इतांश को ऐसे ही लिखेंगे, साउंड्स के थ्रू ही कराएंगे हम। तो क्योंकि जो पहला है वो तो ई बोला जाएगा बिकॉज इट इज कैपिटल, उसके बाद फिर ई दोबारा से ई। नहीं, यही कंफ्यूजन होती है बच्चों को जो ए और ई में ही कंफ्यूजन होती है सबसे ज्यादा। तो हम जैसे हमने एबा काटा कराया ना, तो हम तभी क्लियर कर देंगे ये चीज कि ए एप्पल और ए एलिफेंट, ये ए एप्पल वाला होता है और ये ए जो एलिफेंट वाला होता है, वो तभी हम क्लियर कर देंगे बच्चे को, कि बच्चे को आगे जब हम वर्ड्स पे कराएंगे तो बहुत सारे बच्चों को, सब बच्चों को ही होती है ये डिफिकल्टी। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अगर पेरेंट्स शुरू से एक बच्चे को बताएंगे ना कि ए एलिफेंट वाला है, ए एलिफेंट वाला लिखना है आपको, ए एप्पल वाला नहीं लिखना, तो उसको इतांश की स्पेलिंग हम ऐसे ही कराएंगे, ए ई ट ट, फिर दोबारा से ए न स ह, इतांश। जो लास्ट में श आया ना, वो भी साउंड स्टोरी हम कराते हैं, तो हम स ह नहीं बोलेंगे उसको, हम श बोलेंगे। श साउंड वाले भी वर्ड्स होते हैं बहुत सारे, वो मैंने अभी नहीं कराए, वो मैं आपको पिक्चर सेंड करती। श साउंड के भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लाइक शेल। हम बच्चे को शेल सिखाते हैं, तो हम ये नहीं कराते कि स ह बोलो, स ह ल, हम बोलेंगे श। तो श साउंड वाले वर्ड्स की भी लिस्ट है, वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगी। श साउंड के भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो इतांश के केस में हम
ऐसे ही सिखाएंगे। आप अपने बच्चे को बोलोगे कि बेटा बोलो ए ई डबल ट ए न श, तो लास्ट में क्या ओके। श साउंड, इतांश, ई ट न श, इतांश, ऐसे ही सिखाओगे आप। ओके, मतलब वो लास्ट वाले ब्लेंड करने हैं हमें, अलग अलग नहीं हाँ, वो सिखाने। ओके। साउंड बहुत सारे साउंड ब्लेंड्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको ऊ वाले कराए थे, ल वाले कराए थे, हाँ ई जी। वाले हाँ। कराए थे, तो ऐसे श साउंड वर्ड्स भी होते हैं, च साउंड भी होते हैं, सी एच वाले जो होते हैं वो च होते करेक्ट। हैं। जैसे कि बच्चे का नाम चैतन्य है, ठीक है, तो हम उसको क्या सी क ह नहीं बताएंगे, हम च बोलेंगे, चैतन्य, चैतन्य है तो हम च बोलेंगे, च ए आगे जो भी स्पेलिंग है, ठीक है। ठीक है। हाँ, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एनीबॉडी एल्स? एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में आया है प्रियंका जी, कजरी ने लिखा है कि सपोज वी आर सेइंग ईटिंग, ईटिंग में जो है ए नहीं प्रोनाउंस होता है, ई प्रोनाउंस होता है, सो हाउ डू वी एक्सप्लेन दैट ईटिंग इज कमिंग यूजिंग फोनिक्स, या हम कुछ और करेंगे? Yeah, this is quite confusing for children and parents also, like how to explain the word eating. Okay, तो जब हमने शुरू में साउंड्स कराई बच्चे को, एबा काडा एफा गह, तो उसमें कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो लाइक ए में ई ही हम यूज करते हैं, जो स्टार्टिंग जैसे ईटिंग हो गया, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें हम ई ई ही बोलेंगे उसको, ए नहीं बोलेंगे, तो क्योंकि वो गलत हो जाएगा, एटिंग नहीं होता, ईटिंग होता है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, धीरे धीरे जब हम बच्चे को बड़े वर्ड्स पे लेके आएंगे, स्मॉल लेटर के वर्ड से बड़े वर्ड्स पे लेके आएंगे, तो ये कंफ्यूजन बच्चों की धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो हम वो ईटिंग ही बोलेंगे उसको, ए अ ट ई एन जी, ईटिंग। तो ये जब हम बच्चे को एक्शन वर्ड्स कराएंगे तब हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि एक्शन वर्ड कैसे कराने हैं। ओके, एनीबॉडी एल्स? हाँ, हेलो मैम, सेम प्रॉब्लम मुझे हो रहा है। जैसे कि मैं जब अभी फोनिक्स सिखा रही हूँ, फोनिक्स के 2 लेटर और 3 लेटर वर्ड्स पे, जब जैसे आइसक्रीम, आपको आई को मैं ई वो प्रोनाउंस करने के लिए बता रही हूँ, बट जब मैं आई फॉर आइसक्रीम बोल रही हूँ, क्योंकि सारे बुक्स में आइसक्रीम आइस ऐसा है, तो वो मेरे को देख रहा है, वो मुझे आइसक्रीम बोल रहा है, जबकि वो जानता ही आइसक्रीम है, बट जब मैं इसको पढ़ने के लिए बोलती हूँ रीड दिस, तो बोलता है आइसक्रीम बोल रहा है। तो द सेम कंफ्यूजन कि वो क्या बड़े होने के बाद ये मैं होगा या? वो धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसकी रीडिंग हैबिट्स डेवलप होंगे और बहुत सारे वर्ड्स लाइक उसकी वोकैबुलरी में आ जाएंगे, तो धीरे धीरे सही बोलेगा। आप उसको बोलो बेटा नो इस आइसक्रीम होता है, बार बार उसको ना, बच्चे हमारे जो होते हैं जो स्पेक्ट्रम पे हैं उनको रिपीटेशन चाहिए, बार बार एक ही चीज को आप रिपीट बोलोगे, बेटा नो दिस इज नॉट करेक्ट, आप उसको बताओगे आइसक्रीम बोलते हैं इसको, तो वो धीरे धीरे अपने आप ठीक बोलेगा। और एक चीज अभी मैडम मुझे आपको पूछना था, जैसे कि अभी वो 2 लेटर 3 लेटर वर्ड्स में काफी अच्छा हुआ है, और मैं अभी वो जो डबल एल डबल ओ वैसे वर्ड्स अभी सिखा रही हूँ, बट राइट नाउ साइट वर्ड्स पे ज्यादा बोल रहे हैं, साइट वर्ड सिखाओ, साइट वर्ड सिखाओ। सो आपके जो रीडिंग पैटर्न में साइट वर्ड्स जो मैंने जितना पढ़ा, क्योंकि हमारे टाइम में तो इतना फोनिक्स नहीं था, तो जितना पढ़ा मैंने, साइट वर्ड्स इज देयर सेइंग यू नीड टू मेमोराइज इट। तो या अभी जैसे साइट वर्ड्स हैं, तो क्या हम अभी उसको मेमोराइज ही करवा दें, क्योंकि किंडरगार्टन में उनके करीब कुछ 50 साइट वर्ड्स, फिर इसमें फिर और 70 साइट वर्ड्स, ऐसे उनने डिवाइड किया है। तो हम क्या अभी मेमोराइज उनको कराएं, या साइट वर्ड का भी क्या करें, क्योंकि साइट वर्ड फोनिक के साथ रिलेटेड नहीं हो रहा है, क्योंकि हाँ साइट वर्ड का साउंड कभी भी फोनिक के साथ अटैच नहीं हो रहा है। फ्यू नहीं, लाइक बिग कैन, मतलब मैंने खुद उसको सेग्रीगेट किया कि किसको किसको मैं उसको फोनिक्स में सिखा पाऊंगी। फ्यू वी हैव लाइक जैसे बिग कैन, बट मोस्ट ऑफ द साइट वर्ड्स लाइक लिटिल एंड, मतलब उसमें ना फोनिक्स का बहुत कम ये है, इंटरफेरेंस है। तो उस सब साइट वर्ड्स को अभी क्या करें मैडम, जिसको देख के हम क्या उसको मेमोराइज ही करवा दें? जैसे मैंने आपको स्टेप्स पर आया ना, आप उसी स्टेप्स के थ्रू कराइए, बच्चा अच्छे से सीखेगा। साइट वर्ड्स का ऐसा कोई यूज है नहीं, अगर आप कराना चाहते हैं फिर भी आप करा सकते हैं साइट वर्ड्स, बट कोई यूज है नहीं है सच। आप पिक्चर दिखा के बट उसको बस रीड करो कि ये
एप्पल की पिक्चर दिखा दी तो ये एप्पल है, तो उसको बस बोलना आना चाहिए। जरूरी नहीं है उसको पूरा एप्पल की स्पेलिंग आए कि ए एप प ल है, जरूरी नहीं है, आप उसको, ये कंपलसरी नहीं है। लाइक ओके अगर हम थ्रू जाएंगे तो हम उसमें नहीं आते, साइड वर्ड्स कराते ही नहीं है हम। ओके ओके ओके, क्योंकि अभी जो नर्सरी में है वो लोग साइट वर्ड्स करवा रहे हैं, तो मुझे इसलिए मैं कंफ्यूज थी कि क्या साइट वर्ड्स को याद रखना चाहिए क्या। तो ये ना फिर रीडिंग हैबिट अच्छी नहीं डेवलप होगी। आप करा सकते हो साइट वर्ड्स भी, बस आप पिक्चर दिखा के एप्पल की वो बस ये करा सकते हो, बट स्पेलिंग नहीं लर्न करा सकते आप अभी। और कौन सी क्लास में है आपका बच्चा? अभी वो 5 ईयर्स, मतलब अभी सीनियर किंडरगार्टन का है वो। ओके। सीनियर किंडर, तो उन्होंने अभी साइट वर्ड्स दिए हैं 50 में, जैसे कि वो उनके हिसाब से तो व्हाट, कैन, आई, ए, एम, मतलब ये सब साइट वर्ड्स है। लुक, सी, तो ये सब साइट वर्ड है। तो वही मैं पूछ रही थी, क्या साइट ये तो मेमोराइज कर देंगे, तो ये तो मेमोराइज कितने दिन रहेगा ये पता नहीं, राइट, जो एक आप सीख के साइट बनता है। वर्ड्स बताइए ना, वो कौन क्या वर्ड्स की लिस्ट दी गई है, एक बार आप मुझे थोड़ा सा वर्ड्स बताइए, साइट वर्ड्स की अभी क्या लिस्ट है? अभी जो बोला मैंने, आई, ए, एम, एन, दैट, दिस, सी, लुक, ईट, बहुत सारे, बिग, हाँ, लिटिल, हैव ये भी सब। होता है। हाँ, हैव, यू, हैड, आई, ये सब। हैड, वी। तो और मैम फिर ये जब साइट वर्ड्स अगर हम इनको सिखाएंगे, तो जैसे आपने बोला कि पिक्चर्स के साथ रिलेट करो, तो इनके साथ पिक्चर्स भी हम रिलेट नहीं कर सकते, तो हम कैसे सिखाएं फिर इनको? वही बता रही हूँ मैं आपको, जो आपको साइट हम्म, वर्ड्स कराना है आप वही कराइए बच्चे को, क्योंकि आगे सेंटेंस फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। क्योंकि आई बच्चों को पता है ये दिस, तो वो बोल देगा आई एम अ बॉय, ठीक है, तो वो रीडिंग में हेल्प करेगा आगे सेंटेंस फॉर्मेशन में, आई एम अ बॉय, ठीक है, एम है जैसे, तो ये आगे सेंटेंसेस में हेल्प करेंगे बच्चे की। ये वाले वर्ड्स तो करा सकते हैं, मतलब इसलिए मैंने वर्ड्स। हाँ, अभी वो क्या हो रहा है, हाँ अभी उसको साइट वर्ड्स में सिखा रही हूँ ना, वो अभी मेमोराइज कर दे रहा है, और उसके हिसाब से वो फोनिक्स में नहीं, जैसे कि उसने आई, एम, ए, ये तीनों साइट वर्ड है, राइट, आई, एम, ए, बॉय, सो ब, जो बॉय में ब, वाई जो है, ब, हाँ व, तो उसे हाँ। वो वही बोल रहा है। तो बट मैं वही बोल रही हूँ कि मेमोराइज करना ठीक है या नहीं, मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है, वही बिकॉज देयर बता आर सम 250 साइट वर्ड्स, तो इन दैट मुझे इसीलिए मुझे। सकते हैं, ये आगे सेंटेंस फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। लेकिन जो दूसरे वर्ड्स है ना, 3 लेटर वर्ड्स कराए जो मैंने अभी फोनिक्स के थ्रू, 4 लेटर, वो फोनिक्स के थ्रू ही कराइए। और जो साइट वर्ड्स है वो ये भी कराइए साथ में, ये आगे सेंटेंस फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। एम है, दैट, जैसे दिस है, दिस को जब हम कराते हैं तो द साउंड वाले वर्ड्स में कराते हैं, जैसे दिस, दैट, उसमें द वाले भी होते हैं, थ वाले भी होते हैं, समझे आप? ओके ओके, सो टी एच एस एच ये सब पहले उसको भी सिखाना पड़ेगा, राइट, वे बिफोर द साइट फॉर टी एच एस एच। श्योर ओके साउंड वर्ड, और टी एच वाले वर्ड भी होते हैं बहुत सारे, थ साउंड बोलते हैं उसको, उसमें द साउंड वाले भी होते हैं, थ साउंड वाले भी होते हैं वर्ड्स। ये सारी मैं लिस्ट आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप में, पूरा मटेरियल जो भी है। ओके ओके, थैंक यू मैडम, मैं तो देखने के बाद ही विल गेट टू नो लेकिन हाउ विल स्टार्ट। थैंक यू मैडम। प्रियंका जी एक और क्वेश्चन पूछा है कजरी जी ने कि अगेन फॉर एप्पल वी आर नॉट प्रोनाउंसिंग ए, हाउ टू my kid understand that a is silent or is not there, only by memorizing it. How to make him understand it? Only by memorizing, or is there any rule? ए के लिए तो वी आर नॉट प्रोनाउंसिंग ई, वी आर यूजिंग ए ना, ए, जैसे ए की जो हिंदी में जो हम करते हैं ए की मात्रा, एप्पल, ए एप्पल। आई थिंक वो कह रही है कि एप्पल के एंड में ए साउंड है, लेकिन जब हम एप्पल प्रोनाउंस करते हैं तो वो ल पे खत्म हो जाता है, जब हम बोल रहे हैं ए पे नहीं खत्म हो रहा है। तो बच्चा एप्पल ए, उसको कैसे रोकें, या कोई रूल हो तो कैसे सिखाएं? इसका एक्चुअली कोई रूल नहीं है, बेसिक जैसे हमने ये साउंड स्टोरी पहले करी, साउंड्स कराई, फिर 3 लेटर वर्ड्स कराए, फिर 4 लेटर वर्ड्स कराए, फिर हमने साउंड ब्लेड वर्ड्स कराए, ऊ साउंड, ई साउंड, फिर 4 लेटर्स पे लेके आए, 5 लेटर्स पे लेके आए। तो हमें सीधा बच्चों को एप्पल की स्पेलिंग नहीं सिखानी, हमें पहले 3 लेटर वर्ड्स कराने, 4 लेटर वर्ड्स कराने। और जब बच्चे की वोकेबलरी में इतने सारे वर्ड्स हो जाएंगे ना, तो बच्चे को एप्पल में डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो हम ए, प, ल, ए करके सिखाएंगे तो इजीली सीख जाएगा और मेमोराइज भी करेगा। All right,
थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है? बिकॉज वी आर अबाउट टाइम, सो any question you can unmute yourself and ask. All right, I think Priyanka ji, there are no more questions, so thank you so much, and we'll connect with you on the group, and जो Priyanka ji material भेजेंगी, we'll send it on the group. एक group पे तो वो खुद ही भेज देंगी जिसमें है, और बाकी दूसरे group पे we will forward it. Thank you. Thank you. My pleasure.